Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video on the economic survey. This is a summary for the economic survey volume 2. We already had a discussion about the economic survey volume 1. Economic survey, as you know, one of the important document by the government, and talking about the economic forecast and all over performance of the economic survey is very important, and it is pivotal both for the prelims and mains examination. So we are proceeding with the volume 2. The volume 1 is already there in our playlist section. I'll link down that particular one video. मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दे दूंगा. Do watch that so that your comprehensive economy survey is being completed. Now moving ahead with the volume 2. So we'll see everything chapter by chapter. The same has also happened in the volume 1. मैंने सारे जो वॉल्यूम 1 में जितने भी चैप्टर्स थे उनको चैप्टर वाइज जो भी उसकी समरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पूरे चैप्टर से, जो कंपाइलेशंस है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की है. एंड वन थिंग आई वांट टू इंश्योर यू दैट कि जितनी चीज़ें हैं बॉक्सेस में वो सारी चीज़ें को आपको पढ़ना है. दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. और हर चैप्टर में जो बॉक्सेस हैं, खास करके जो डेटा ड्रिवन बॉक्सेस हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं. उसके अलावा सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ें. Now, starting the first chapter, that is the state of the economy, 21, a macro view. So, COVID-19 pandemic has ensured a global economy downturn, जिसके वजह से बहुत सारे severe consequences हुए, global financial crisis हुई, और global economic output की अगर बात करें, so this is estimated to fall by 3.5%. This was being anticipated by the IMF. IMF में केजे जो estimates थी 2021 के लिए वो 3.5% के आसपास की बताई गई है. Now, government and central bank across the globe, they have deployed various policy to support their economy, such as lowering policy rate, quantitative easing measures, और ये सारी चीज़ें. तो जब इस तरह के पॉइंट्स आए, quantitative ease measuring, so this is an economic term. तो आपको इसको economic perspective से देखना होगा कि economic ease जो quantitative easing है उसके क्या क्या consequences है, कब किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करनी होती है, और पॉलिसी रेट के क्या क्या इन लोअरिंग जो पॉलिसी रेट हुए उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं इकोनॉमी में. सो द एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Now this is a snapshot about the entire performance of the economy. आप देख सकते हो GDP. So 2021 फर्स्ट क्वार्टर मतलब सेकेंड क्वार्टर के बाद it was 7.7% in negative, and it is anticipated कि आने वाले समय में 2021-2022 में the growth rate would be close to 11%. Now talking about the balance of payment, this is like current account balance की अगर बात करें, so the current account balance is 3.1% of the GDP. और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर 1920 इट वाज माइनस 0.9%. टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स रिजर्व, वी विल डिस्कस द फॉरेक्स रिजर्व इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. द थर्ड इज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फिशिंग, राइट. सो दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ GVA. यहाँ पे जो बेसिक प्राइस है दैट इज 5.9 जो कि 17 में, इसमें बेसिकली 4 ईयर की कैलकुलेशन की गई है. प्रेजेंट में इस बार इट इज़ 3.4%. तो एग्रीकल्चर एक ऐसी सेक्टर थी, अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखी गई. दिस वॉज द ओनली सेक्टर विच हैज़ विटनेस द पॉजिटिव ग्रोथ. Now, industrial growth, we have seen a negative industrial growth because of the lockdown. Every industries and the factory, the manufacturing unit were shut down. तो यहाँ पे -9.6% की ग्रोथ है. Inflation, as you know, again, inflation is like WPI, CPI, आप देख सकते हो, this is the graph. Fiscal deficit is 3.5%, और services sector is also -8.8. तो industrial growth and services, these are the two worst performance amid the COVID-19 pandemic. Now coming to the India's strategy, how India is going to adopt a strategy. क्या इंडिया के पास स्ट्रैटेजी है? तो 4 पिलर स्ट्रैटेजी बनाई गई है: कंटेनमेंट, फिजिकल, फाइनेंशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर प्लान. एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग अकॉर्डिंगली. बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज भी गवर्नमेंट लेकर के आई है, उसके अकॉर्डिंगली उसी पिलर पे जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उस पर काम कर रही है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैलिब्रेटेड फिजिकल और मॉनिटरी सपोर्ट जो है लोगों को प्रोवाइड की गई आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस के थ्रू, रोजगार पैकेज के थ्रू, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे जहाँ पे वनरेबल लोगों को ड्यूरिंग लॉकडाउन दे वर प्रोवाइडेड द लाइवलीहुड एंड फूड इनफैक्ट फॉर फ्री. Now, a favorable monetary policy would ensure abundant liquidity, जहाँ पे immediate relief दी जा सकती है डिवोटर्स को. तो गवर्नमेंट ने मोराटोरियम के जो ऑप्शंस थे उसको भी एक्सप्लोर करके रखा था ताकि बेसिकली जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है वो कम किए जा सके. Now, India's real GDP to record 11% the growth of
2021 2022 और नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें सो दिस इज 15.4%. तो मेक श्योर आपको ये रियल और नॉमिनल में आप डिफरेंस समझ लें. फॉर रियल इट इज 11.10% एंड फॉर नॉमिनल इट इज 15.4%. So this is highest since independence. This is what has been claimed in the basically in the economic survey volume 2. Now coming to the sector wise performances, किस तरह से sector wise की performance रही है. बात करें हर sector की तो export की अगर बात की जाए तो it declined 5.8% and import almost 11.3% in the financial half year of 2021. और इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ करेंट अकाउंट सरप्लस जहाँ पे 2% ऑफ जीडीपी तक की देखी जा सकती है. दिस वुड बी ऑल्सो एंड हाइएस्ट अमंग द 17 ईयर्स. पिछले 17 सालों में इस तरह की जो करेंट अकाउंट सरप्लस देखी गई है 2% ऑफ जीडीपी. नाउ ऑन द सप्लाई साइड जो ग्रॉस वैल्यू जो खास करके जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडिड दिस इज picked by -7.2 फाइनेंशियल ईयर में और इस प्रेजेंट ईयर में इट वाज इन द प्रीवियस ईयर इट वाज 2020. तो प्रेजेंट में -7.2% और प्रीवियस ईयर 3.9%. तो डेफिनेटली जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसका इम्पैक्ट दिखा और कोविड-19 की जो पेंडेमिक की जो रिपरकशंस थे वो इसमें भी देखने को मिले. एग्रीकल्चर सेट अ कुशंस टू शॉक. कोविड-19 के बाद पेंडेमिक के बाद एग्रीकल्चर वाज द ओनली सेक्टर दैट हैज शोड द पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 3.4%. इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर मैंने आपको बता दिया इसकी परफॉर्मेंसेस कैसे रही है. बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही थी इंडस्ट्रीज के भी और सर्विस सेक्टर के भी. So I've shown you this graph as well, so you can refer to this graph where you can understand it easily. Now coming to the foreign direct investment, India remained a preferred investigation. अगर बात करें destinations की तो 2021 के लिए जो ये पूरी financial year रही है 2020 to 2021, India was among the most favored destination. And net FPI inflow की अगर बात करें this is all time high, 9.8 billion in November 2020. And India was the only country among the emerging market that received equity in FFI flows in 2020, right? So this is all about the FDI in India. Now forex reserve, this is one of the significant portion of the government debt. So अगर external debt की अगर बात करें, so the ratio of GDP has increased 21.6% and end in September basically it was 20.6% in end of the March. तो ये दोनों कंपैरिजन की गई है किस तरह से सितंबर की परफॉर्मेंस थी और किस तरह से मार्च के एंड तक की परफॉर्मेंस है, राइट. तो रेशियो फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात करें सो टोटल शॉर्ट टर्म डेट हैज इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ द साइजेबल एक्सक्रेशन एज अ रिजर्व. यू कैन सी दिस फिगर विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड किस तरह से 2017 से 18 में $424 बिलियन थी हमारी फॉरेक्स रिजर्व. आज ये 2021 में बढ़कर $586.1 बिलियन हो गई है. सो डेफिनेटली फॉरेक्स रिजर्व है इम्प्रूव्ड. और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जब भी आपके प्रॉब्लम्स में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सो दे विल आस्क यू द ट्रेंड. वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे क्या अमाउंट है, यूपीएससी विल नेवर आस्क दिस अमाउंट. दे विल आस्क यू दैट द फॉरेक्स रिजर्व हैज ड्रास्टिकली डिक्रीज और ड्रास्टिकली इंक्रीज. इस तरह के सुपरफ्लुअस वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रॉब्लम्स में. तो मेक श्योर आप इस तरह के कैची वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ें एग्जाम में और सही आंसर को मार्क करें. Now V-shaped recovery is underway in terms of the forex reserve. Now talking about the India's effort against the COVID-19, India ने contain किया COVID-19 को. So India become the fastest country to roll out the 10 lakh vaccine in 6 days और also emerged as a leading supplier to the vaccine the neighboring country and Brazil. सो बात करें इंडिया में जो दो इंपॉर्टेंट कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिनकी कोविड शील्ड वैक्सीन है, उसके बाद भारत बायोटेक, राइट. सो दे हैव द कोवैक्सीन जो डेवलप की गई है. तो दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है. इंडिया ने अपने एक्सीलेंस को दिखाया है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की और अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी दिया है एक्सेप्ट पाकिस्तान. Now economy homecoming is normalcy brought close by a nation and mega vaccination drive which is taking place. Now reform must go to enable India a sizable and its potential growth and ease the adverse impact of the pandemic. So this is what India's effort has been in terms of controlling the COVID-19 pandemic and overall जो situation रही है गवर्नमेंट की वो appreciable ही है. गवर्नमेंट और अच्छा कर सकती थी but this is something that can be done. Best possible चीज़ों को निकाला गया है. Now coming to the chapter 2, physical developments. So let's see what are the important points that are there in the chapter. So expenditure policy की अगर बात करें, initially it aimed at supporting the vulnerable section but was reoriented to boost the overall demand. Capital spending की अगर बात करें, so that was again impacted because of the lockdown. और monthly GST collection have crossed almost 1.1 lakh crore mark.
कंसिक्यूटिवली फॉर द लास्ट 3 months, राइट। तो जीएसटी के कलेक्शन भी इंप्रूव हुई है, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट की जो जीएसटी की जो सेस है वो अभी तक स्टेट को मिली नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट हैज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जीएसटी कलेक्शन अच्छी हो रही है तो सेंटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो स्टेट को भी जो उनके बकाए हैं वो उनको वापस दिया जाए। The reform in the tax administration has taken place. This has just begun और ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया है टैक्स के कंप्लाइंसेस को, और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के जो एक्सपीरियंसेस है उससे चीज़ों को और इन्हांस किया जाएगा, सिस्टम में किस तरह से चीज़ों को सुधार की जा सकती है। Now, the central government has also taken consistent step to impact the support of the state and challenging time during the pandemic. Now, faceless assessment system, we have already discussed this faceless assessment scheme. This is for 2020. If you're watching our PRS series or Yojana, you must have read this. तो फेसलेस स्कीम 2019 जो है ये एक असेसमेंट स्कीम है जिसको लाया गया था 2020 में, और दिस वाज रीनेम्ड एज ई असेसमेंट स्कीम, पहले इसका नाम था, अब इसको फेसलेस असेसमेंट स्कीम के नाम से जाना जा रहा है। Now, this is an automated random allocations of the cases of income tax department, जहाँ पे जो jurisdiction होगा, जो कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, एक प्रॉपर नॉर्म्स जो प्रोसीजर्स है उनके अकॉर्डिंगली स्क्रूटनाइज की जाएगी। Now, it will lead to efficient, non-discriminatory, unbiased single window system and assessment process. Now, the scheme would establish the National Face Assessment Center. So, जो उसकी हेडक्वार्टर होगी that would be established in Delhi, और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो होंगे इनकम टैक्स के that would be the sole point contact between the department and the taxpayer. So, government is trying to promote transparency and accountability in terms of the assessment of the income tax. Now, faceless appeal scheme, this is a new scheme for 2020. So, all the taxpayer appeal will finalize the faceless manner under the faceless ecosystem, which is exceptions of the appeal related to the serious fraud, major tax evasion, sensitive और जो सर्च मैटर्स हैं लेकर के किसी भी इंटरनेशनल टैक्स, ब्लैक मनी को लेकर के, तो इस तरह के जो कंप्लेंट्स है वो फेसलेस अपील स्कीम के थ्रू किए जा सकते हैं, राइट। Now, coming to the other chapter, this is chapter number 3, and the title of this chapter is external sector. External sector एक बहुत ही significant chapter होती है economic survey में. Let's see what is the detail coming from this chapter. So, India Forex Reserve is all-time high, which I have told you. It is 586.1, और ये जो overall 18 वर्थ की जो वर्थ imports हुई है उसके बाद है। Now, you're experiencing the current account surplus along the robust capital inflow. The BOP अगर बात करें balance of payment surplus की, this is there also seen in the quarter 4. और sharp fall देखी गई है current payment में by 30.8%, then the current receipt of 15.1%. Current account surplus of US $34.7 billion. सो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये जो जीडीपी के परसेंटेज है वो याद रखें, दैट यू कैन राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल. यू डोंट नीड टू राइट दिस नंबर, यू कैन राइट कोट दिस 3.1% ऑफ द जीडीपी. नाउ पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट्स एक्सपोर्ट की बात करें, सो दे हैव कंट्रीब्यूटेड नेगेटिवली टू द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रिव्यू. और नॉन पीओएल की बात करें, पेट्रोलियम, ऑयल एंड lubricant exports की they have turned positive and help in improving the export performance of quarter 3. So economy post pandemic के बाद quarter 1 में जो performance थी बहुत ही पुअर थी, quarter 2 में चीज़ें बैलेंस हुई और quarter 3 से जो improvement है वो दिखना शुरू हो गया. So it is being anticipated कि आने वाले कुछ 2 quarters में इंडिया की performance प्री कोविड लेवल पे वापस चली जाएगी. Now, within the non-fuel export, agriculture and elite sector, drugs, pharmaceutical are the, this is something which is very important in terms of the expansion also. And sharp decline in the POL import has pulled down the overall import growth, right? So, decline अगर बात करें petroleum और lubricant में हुई है, overall import में basically impact देखे गए हैं और overall जो इसकी import growth है वो decrease हुई है, right? So, this is what it's all about the petroleum, oil and lubricant products. Now, vegetables, oil, fertilizer, drugs, pharmaceutical, computer hardware, and periphery have contributed positively to the growth. These are the non-POL, non-gold और non-silver imports में इनकी category सबसे high है, सबसे positive है. And resilience of the service sector was primarily driven by the software services, which accounted for 49% of the total service of the export. Now, improvement in the debt vulnerability indicators. तो अगर बात करें रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, सो ऑफ टोटल ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट, दिस इज ओरिजिनल एंड रेसिडुअल. और रेशियो अगर बात करें शॉर्ट टर्म डेट की, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक वर एक्सटर्नल डेट.
आप एक्सटर्नल डेट की वर्नेबिलिटी के जो इंडिकेटर्स है वो देख लें, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में कुछ डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज। ना डेट सर्विसेज की अगर बात करें तो डेट वर्नेबिलिटी इंडिकेटर्स भी बनाए गए थे, आप उसको वॉल्यूम 1 में भी देख लें, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 9.7 at the end of the September and 6.5 at the end of March 2020. Now rupee appreciation and depreciation in terms of six currency, जो nominal effect range है NER जिसको कहते हैं, a question can be asked from NER also, nominal effective exchange rate। तो ये रूपी डेप्रिशिएशन देखी गई 4.1% इन दिसंबर ओवर मार्च 2020, और आरबीआई ने इंटरवीन किया था जहाँ पे फॉरेक्स मार्केट को ये इंश्योर किया गया कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ऑर्डरली कंडीशन में इंश्योर की जाए, कंट्रोलिंग ऑफ वोलेटिलिटी एंड वन साइड एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी शुड बी देयर। तो आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन करती रही ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एंड दे हैव कमेंडेबली डन अ ग्रेट जॉब। आरबीआई हैज डेफिनेटली इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। Now, initiative undertaken to promote the export, क्या क्या ऐसे important initiatives थे? So first is production link incentives scheme. We already had a discussion, अगर आपने हमारा PRS का वीडियो देखा तो उसमें आपको चीजें मिल जाएगी। Remission of the duties and taxes export to the product and improvement in the logistic infrastructure and digital initiative. So these were some of the important initiatives that were taken with regards to the promotion of exports। और अब promotion linked incentive जो PLI है उसे को आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देख लें, यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। दिस कैन बी अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। नाउ चैप्टर नंबर 4, दैट इज मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस। So let's see, since March 2020 the policy repo rate has been reduced by 11 basic points from 5.15%, और अगर सिस्टमैटिक लिक्विडिटी की बात करें 2021 that has remained to surplus, so that RBI undertook various convention and अनकन्वेंशन मेजर्स लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन करती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिजिकल मेजर्स हैं, मॉनेटरी मेजर्स हैं, बेसिकली जो कंट्री में फिजिकल पॉलिसी होती है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। So government used to control the fiscal policy, when it's come to monetary policy, it is the sole prerogative of RBI। तो RBI ने अपनी monetary policy में open market operations include किए, long term repo rates operations include किए, और targeted long term repo operations भी include किए। So this was the part of monetary policy that was being conducted by the RBI। Now gross non-performance asset ratio जो शेड्यूल की गई थी कमर्शियल बैंक है, that has decreased to 8.21 at the end of the March, और 7.49% थी 2020 के लिए। Now the monetary transmission of the lower policy rate of the deposit lending that have improved in 2021. So there is some improvement in the other part of the economy as well. Nifty 50 और Sensex की अगर बात करें, they have touched the record high closing of 14,644। आपके लिए नंबर जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट आप ये याद रखिए कि निफ्टी ऊपर परफॉर्म की थी और बीएसई सेंसेक्स की परफॉर्मेंस भी सही रही थी। नाउ द रिकवरी रेट ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थ्रू आईबीसी, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को बनाया गया, उसके बाद से सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है। ओवरऑल देयर हैव बीन 45% ऑफ द इंप्रूवमेंट दैट हैज बीन सीन इन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। Now coming to the 5th chapter, this is price and inflation. Let's see how the inflation was there during the COVID-19. So headline CPI की अगर बात करें, so average 6.6% रही थी for 2020, और इसको आगे फिर देखा गया it has increased by food inflation increase with 6.7%, और अप्रैल में 9.1% थी 2020। CPI हेडलाइन की अगर बात करें, आप हेडलाइन के ज़रूर इसमें पॉइंट्स देख लें। CPI हेडलाइंस भी कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसके बास्केट्स में। सो द ग्रुप विटनेस द इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द अप्रैल 2020, दिस इज सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द प्राइस मोमेंटम ड्यू टू इनिशियल डिस्ट्रप्शन बाय द कोविड-19 लॉकडाउन। और अगर बात करें मॉडरेट प्राइस मोमेंटम की, तो नवंबर 2020 में मोस्ट ऑफ द सब ग्रुप कपल्ड विद द पॉजिटिव बेस हैज इफेक्ट विद द ईज ऑफ इन्फ्लेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेडलाइन CPI इन्फ्लेशंस। ना रूरल अर्बन डिफरेंस की अगर बात करें CPI इन्फ्लेशन में, यहाँ पे डिक्लाइन देखी गई है सिंस नवंबर 2019। जो CPI अर्बन इन्फ्लेशन है दैट हैज क्लोज टू द गैप विद द CPI रूरल इन्फ्लेशन, राइट। तो ये दोनों के बीच में जो गैप थी उसको बहुत हद तक द रूरल इन्फ्लेशन हैज क्लोज टू द गैप ऑफ CPI इन्फ्लेशन इन द टाइम्स ऑफ, बेसिकली नवंबर से ये बातें की जा रही है, तो अब टाइमलाइन को ध्यान रखें कब से ये बात हो रही है। एंड फूड इन्फ्लेशन हैज ऑलमोस्ट कन्वर्ज्ड नाउ, इट हैज ऑलमोस्ट बीन कन्वर्जिंग, because in terms of urban की अगर बात करें, रूरल की बात करें, so it has already closed in the gap. Now in December 2029 as well as in the April 2020, the major driver were CPIC inflation and the food and beverages group were something that was a major part of it.
थाली कॉस्ट की अगर बात की जाए, थालीनॉमिक्स के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी ज़्यादा जिक्र भी है. सो इन जून 2020 and November 2020 a sharp fall has been seen in the month of December, reflecting the fall in the price of essential food commodities, right? So because of the lockdown and some consumption has also increased, तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो कॉस्ट है that has increased और दिसंबर में फिर बाद में धीरे धीरे प्राइस फॉल होने लगे, राइट. नाउ स्टेट वाइज अगर ट्रेंड की बात करें CPIC में, so this is like increased in the most of the state in the current year. Regional variation अभी भी exist कर रही है metropolitan cities में, suburban cities में, या फिर जो tier 2 cities हैं rural area में, सब जगह पे variation है. Inflation range from 3.2% to 11% across the state. और अगर फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें, दिस इज ओवरऑल CPI इन्फ्लेशन ड्यू टू रिलेटिवली मोर वेट इन द फूड आइटम इन द इंडेक्स, राइट. तो फूड इज डोमिनेटिंग द CPI पार्ट. और यहाँ पे पहले लॉकडाउन के टाइम पे जो प्राइस थी वो हाई थी, उसके बाद धीरे धीरे अब इस टाइम पे एंड में ऑफ दिस 2020 द प्राइस है शार्पली डिक्रीज. Now talking about the steps that was taken by the government to stabilize the price of food item because the price was increasing. So what government did? Government has banned the export of onion because we have seen the price was rising. There was a surge in the price of onion also. Imposition of the stock limit on the onions and easing of restriction of the import of the pulses. So these were some of the important steps that was taken by the government to stabilize the price of the food items. Now talking about the gold prices, there was a sharp hike and investor turned into the gold to the safe haven investment amid COVID-19 because बहुत सारे लोगों ने investment यहाँ पे safest समझा because stock market, mutual fund were not performing well, right? And compared to other asset, gold has considerably higher return during the financial year of 2021. Coming to chapter number 6, this is sustainable development and climate change. This is one of the significant and most important chapter of the economic survey volume 2. So let's see what are the details coming from this chapter. India has taken several proactive steps to mainstream the SDG, जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको लेकर के जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसको गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली लिया है. इवन प्री पेंडेमिक भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इंडिया की. अगर बात करें वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू के बारे में, सो दे हैव प्रेजेंटेड यूनाइटेड नेशंस टू द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इंडिया इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज और इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके तरफ पॉलिसीज बने और इंडिया इज मोर टूवर्ड्स द एडहेरेंस ऑफ द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट ऑल्सो. तो लोकलाइजेशन ऑफ SDG अगर बात करें, इट इज क्रूशियल. यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये बनाई गई थी कि किस तरह से जो गोल्स हैं, जो 2030 के जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उसको अचीव किया जा सके. Several state and union territories have created institutional structure to implement the SDG as a nodal mechanism within the department and the district level for better coordination and convergence. Now, sustainable development has remained the core development strategy despite the unprecedented COVID-19 pandemic crisis. Now, there are 8 important missions under the National Action Plan on the Climate Change that focuses on the objective, adaptation, mitigation, and preparedness of the climate risk. So, this is India's 8 core missions. So, you should know all the 8 missions because any mission can be important for the prelims. First is National Solar Mission. Second is National Mission for Enhanced Energy Efficiency. Third, National Mission on Sustainable Habitat. National Water Mission, National Mission for Sustainable and Himalayan Ecosystem, National Mission for a Green India, National Mission for Sustainable Agriculture, and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change. So these are some of the important 8 missions that is undertaken by the NACPA, NAPCC missions that is there under India's adaptations. नाउ नेशनल जो नेशनल डिटरमिनेड कॉन्ट्रीब्यूशंस है NDC जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स के लिए, उसने भी इंडिया ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रखी है. फेसिंग कंसिडरेशन विद देयरफॉर रिमेन क्रिटिकल स्पेशली फॉर द कंट्री टू स्टेप द टारगेट एंड सब्सटेंशियली. पोस्टपोनमेंट की अगर बात करें, सो COP21 जो 26 से लेके टू 21 दे हैव ऑल्सो सीन लेस नेगोशिएशन ऑन अदर एविडेंस वर्क टू द पोस्ट 2025 गोल्स. और इंडिया की परफॉर्मेंस वैसे भी अच्छी रही है. अगर आप बात करेंगे ओवरऑल ग्रोथ बॉन्ड मार्केट में, ग्रीन बॉन्ड में, इशुएंस ऑफ फर्स्ट बॉन्ड 2020, सो दे हैव स्लोड 2090 पॉसिबली बाय द रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक. और इंटरनेशनल सोलर लाइंस की अगर बात करें, दिस वाज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स. इस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल पूछे हुए हैं. सो दिस वाज लॉन्च्ड विद द 2 न्यू इनिशिएटिव्स, दैट इज वर्ल्ड सोलर बैंक एंड वन सन
one world, one grid. So these are the initiatives that was undertaken under the international solar alliances. तो ये दोनों आप याद रखें. This is very significant for your prelims examination. Prelims में यहाँ पे direct सवाल पूछे जा सकते हैं. Now coming to chapter number 7, agriculture and food management. So in this chapter, agriculture sector जो है that have shown resilience amid the adversities of the COVID-19. मैंने आपको बताया agriculture एक ऐसे sector है which has seen the positive growth rate of 3.4%. बहुत ज़्यादा नहीं है but at least lower नहीं है. अगर ये lower होती तो इंडिया में फिर inflation बढ़ सकती थी, right? Now the share of agriculture and allied sector in the cross वैल्यू एडेड, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की अगर बात करें जीवीए की, सो इन द करंट प्राइस 7.8% 1920 के लिए, और बाद में फिर जो क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस हैं रिलेटिवली टू जीवीए दैट हैव शोन फ्लक्चुएशन. सो मैंने आपको पहले ग्राफ में भी बताया दिया किस तरह से फ्लक्चुएशन देखने को मिली है. नाउ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड द एग्रीकल्चर ईयर फॉर द 4 एडवांस एस्टिमेट इज 11.4 बिलियन टन्स, राइट? A Kisan Credit Card, this was the initiative that was taken by the government. The 1.5 करोड़ ऐसे डेली फार्मर्स हैं जो कि डेयरी सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके मिल्क कॉपरेटिव्स हों या फिर मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से, दे वर टारगेटेड टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको केसीसी के नाम से भी जाना जाता है, एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत पैकेज आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट ऑफ February 2020, राइट? एंड एज अ मिड 21 अगर बात करें जनवरी में, तो यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड है दैट हैज़ इशूज़ टू फिशरीज सेक्टर ऑल्सो, जो फिश के फार्मर्स हैं, और एडिशनली 4.04 लाख एप्लीकेशंस और भी मिली है गवर्नमेंट को, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा. नाउ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दिस कवर 5.5 करोड़ फार्मर एप्लीकेशंस ऑन अ ईयर, और द स्पीड जो क्लेम सेटलमेंट होती है वो डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में, उनके आधार सीडेड जो लिंक्ड अकाउंट है उनको बेनिफिशियरीज को पैसे वापस दिए जाते हैं. Now the 70 लाख फार्मर आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस क्लेम. और अगर बात करें आने वाले ट्रांसफर्स की, तो जितनी गवर्नमेंट ने ट्रांसफर की उसका डेटा गवर्नमेंट के मुताबिक इट इज 8741, राइट? 8741 करोड़ रुपये. दिस नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम जस्ट कोटिंग यू टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअल में डेटा रही है, राइट? Fish production has reached all-time high of 14.16 metric tons, and food producing other industries अगर बात करें FPI की, so this sector is on average annual growth rate of 9.99% compared to 3.11% of the agriculture, 8.22% of the manufacturing in the last 5 years, right? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस वाज अगेंस्ट ड्यूरिंग द कोविड-19, जिसमें जो बेनिफिशरीज हैं उनकी जो परसेंटेज है, या फिर आप पूरे पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, तो 80.96 करोड़ वे द बेनिफिशरीज अंडर द NFSA, और ओवरऑल 200 जो है फूड ग्रेन लाइन मेट्रिक टन्स जो है वो देवर प्रोवाइडेड अकाउंटिंग द फिजिकल आउट को विद द कॉर्पस ऑफ 75,000. दिस नंबर अगेन नॉट दैट रेलेवेंट, डू नॉट फोकस ऑन दिस नंबर. आत्मनिर्भर भारत पैकेज, यहाँ पे 5 kgs पर राशन पर मंथ 4 मंथ के लिए दिया गया था. गवर्नमेंट ने इसको आगे इंक्रीज भी किया था, और अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ जो माइग्रेंट्स थे उनको इसका बेनिफिट मिला. एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सेट वन नेशन वन राशन कार्ड वुड बी देयर, सो दैट कि जो भी माइग्रेट लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, जो ऐसे लेबरर है, दे आर माइग्रेटिंग टू डिफरेंट स्टेट, उनको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा वन नेशन वन राशन कार्ड का. Now chapter 8, that is industries and infrastructures. So in this chapter it talks that कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज रही है, वी शेप्ड रिकवरी हुई है. एंड IIP की बात करें तो 8 कोर सेक्टर दैट हैव इंच्ड अप प्री कोविड लेवल्स, थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही है. Now the broad-based recovery in IIP has resulted to the growth of -1.9% in November compared to growth rate of 2.1% in November 2019 and -57.3% in April 2020. So this was the huge depreciation which we have seen in the IIP sectors. Now आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें, with a stimulus package of 15% of India GDP was announced. India ranked in the ease of doing business index of 2019 that has moved upward 63rd position in 2020 from 77th positions to the ease of doing business. So performance has also improved. Ease of doing business में इंडिया ने अपनी रैंकिंग इम्प्रूव की है, और इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स पोजीशन 7 आउट ऑफ इन द 10 इंडिकेटर्स. जो जितने 10 इंडिकेटर्स है उसमें 7 इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है. Now acknowledges India one of the 10 improvers in the time with the row 67 rank in the 30s. It has seen also highest jump in the country since 2011.
सो दीज आर सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस इफ यू राइटिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन, आप इस तरह के बातें जो इंडियन इकोनॉमी ने कोविड-19 में जो परफॉर्मेंसेस इंप्रूव किए उसको ज़रूर नोट करके एग्जाम में लिखें अगर ऐसी क्वेश्चन आती हैं। Now FDI equity inflow की बात करें, so this has also compared to the financial year, this has also a little bit improved. और bulk FDI equity, this is non manufacturing sector, और manufacturing sector में जैसे industries हो गई, automobile है, telecommunications है, metallurgies है, non conventional energy, chemical, and these have got a bulk of FDI, जो foreign direct investment है वो इन sector में बहुत हद तक improve हुई है। Now government has also announced a productions linked incentive PLI scheme के बारे में आपको पहले भी मैंने बताया, we already had a discussion, you can watch that video, जहाँ पे 10 key indicators under aegis of Atmanirbhar Bharat for enhancing the India's manufacturing capacity for the export has been taken place, or to implement by the concerned ministry with overall expenditure estimate of 1.46 lakh crores, right? So this is something which government has taken. और अगर इस तरह की PLI scheme की बात करें तो PLI scheme has definitely improved a lot. Now chapter 9, that is services. India's service sector contracted 16% during the half year of 2021, और कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसके बाद जो लॉकडाउन के बाद इंटेंस कॉन्ट्रैक्शंस देखी गई हैं, ये एक नेचुरल चीज़ें थी जो होनी थी। तो की इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, दिस इज SPMI, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स। रेल फ्राइट टैरिफ एंड पोर्ट टैरिफ आर डिस्प्लेइंग V-shaped recovery after the sharp decline during the COVID-19 lockdowns. And despite the disruptions and witness of globally, FDI की अगर बात करें तो inflows India services sector grow robustly 34% के आसपास year to year. This is YOY, this is called as year to year, और अप्रैल सितंबर में this has reached to $23.6 billion. Now the service sector account for 54% of the India's GV, nearly 4/5 of the total FDI into India. और जो सेक्टर की अगर बात करें, सेक्टर shares the GV exceed 50% in 15 out of 13 states. So particularly more pronounced थी दिल्ली और चंडीगढ़ में. Now the service sector account for 48% of the total export. तो this number, this percentage is important. और इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात करें तो कोविड-19 के बाद चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और 12 न्यू स्टार्टअप थे जो यूनिकॉर्न लिस्ट में थे, दे हैव ऑल्सो टेकन अ लीड. So some improvement has also been seen in the part of startup ecosystem. गवर्नमेंट ने इसने स्टार्टअप इकोसिस्टम सीड फंड भी स्टार्ट किए हैं इसके लिए. सो आपको उसके बारे में पता होगा, मैंने जो हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसमें इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया हुआ है. Now space sector has spent $1.8 billion in program. और कंट्री की अगर बात करें, वी हैव लैग्स बिहाइंड द मेनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक USA दैट स्पेंड अराउंड 10 times मोर देन इंडिया इन द स्पेस सेक्टर. तो अभी हमारी स्पेस में जो ओवरऑल फाइनेंसेस है या फिर जितने हमारी स्पेंडिंग एलोकेशंस है वो US से काफ़ी कम है. एंड इंडिया हैज़ लॉन्च्ड 5-7 सैटेलाइट पर ईयर इन द रिसेंट ईयर. और ऑन द अदर हैंड US, रशिया, चाइना, देयर आर डोमिनेट सैटेलाइट लॉन्चिंग विथ 19, 25, 34, राइट. तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इन कंट्रीज ने सैटेलाइट लॉन्च किए इन द स्पेस सेक्टर्स. Now chapter 10, this is the last chapter. This talks about social infrastructure, employment and human developments. So a combined अगर बात करें सेंटर और स्टेट की, तो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर जो है दैट इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द DGP दैट हैज इंक्रीज टू 2021 कंपेयर टू द लास्ट ईयर. तो जो परसेंटेज ऑफ GDP होती है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली. एंड इंडियाज रैंक इन द HDI वॉज 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज. एंड इंडियाज़ की GNI पर कैपिटा की बात करें, सो दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड टू दिस मच. नाउ इट इज़ लाइक 668 2019 के हिसाब से. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें, दिस हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव 69.4 एवरेज इंडिया में हुआ करती थी. नाउ इट हैज़ इम्प्रूव टू 69.7. एक्सेस टू डेटा नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो बढ़ी है बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें थे जो पैंडमिक के टाइम में लोगों ने यूज़ की हैं. Now government incentive to boost the employment through Atmanirbhar Bharat रोजगार योजना, rationalization and simplification of the existing labor code into 4, right? तो लेबर कोड को भी गवर्नमेंट ने जितने भी मल्टीपल लेबर कोड्स थे उनको 4 कोड्स में अलमिगेट कर दिया है ताकि जो लेबर लॉ कंप्लाइंसेस है वो ईजी हो सके. Now low female in the
LFPR, अगर बात करें LFPR की जो रेशियो है इंडिया में, तो फीमेल स्पेंडिंग इज disproportionately more time on the unpaid domestic and care services. This is household compared to that. And need to promote non-discriminatory practices at workplace like pay and career progression, improve work incentives, including the other medical and social security benefits to the female workers. Now, moving ahead with the free distribution of gas cylinder, this is about 8 crore of the families for 3 months. Government ने free distribution दी थी वैसे लोगों को below poverty line, the people who were among the BPL categories, they were provided. और limit of collateral free lending has also increased from 10 lakhs to 20 lakh for 63 जो self help group की जो women हैं जो काम कर रही हैं उनके लिए. And wages under the महात्मा गांधी नरेगा एक्ट, यहाँ पे 20 रुपीज़ की इंक्रीमेंट की गई थी. तो अब जो प्राइजेज है डेली वेजेस की जो है वो 202 हो गई है. इट वाज 182 प्रीवियसली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. Now, India fight against COVID-19, how India has taken all its measures. So initially measures of lockdown, social distance and the travel advisory practice hand on hand where wearing mask, reduce the spread of the COVID-19 disease were taken. India ने already vaccines भी बना लिए बहुत ही जल्दी. Not only India, US and other countries has also manufactured. Russia has also manufactured. So this is for the first time in the history of pandemic that any country like India, Russia and United States have made vaccine within 1 year. Right? तो एक साल में कभी तक वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है. Now, country has also acquired self-reliance in terms of essential medicine, health sanitizer, protective equipments, PPE kits हों, ventilators हों, COVID-19 टेस्टिंग किट्स हों, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हों, ये भी मेक इन इंडिया के थ्रू सेल्फ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया गया. वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव इज कमेंस्ड. 16 जनवरी से इसको स्टार्ट किया गया था और 2 इंडिजिनस वैक्सीन जो हैं, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, आप इन दोनों के नाम हमें बता सकते हैं कौन कौन इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. मैंने आपको पहले भी बता दिया कौन कौन सी वैक्सीन है. तो वन इज कोविडशील्ड एंड अदर इज कोवैक्सीन. राइट, तो आप इन दोनों के बारे में बताएं कि कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन सी खास करके जो इंडिया में ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर द इंडिजिनस ड्रग्स मैन्युफैक्चर, उनके नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Now, this was all about the economic survey. If you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.